ایک عجیب اور حیران کر دینے والا یہ ویڈیو سامنے آیا۔ کہا جاتا ہے کہ باندرا ممبئی کی جامع مسجد میں ایک لڑکی ایک عورت مسجد کے اندر گھس آئی اور اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا کیا، اچھا خاصا تماشا بنایا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں۔ ارے مسجد ہے، اس میں سب وضو کرتے ہیں، تم اندر جا کے گھوم رہے ہو۔ ارے تو یہ حوض ہے، اس میں سب لوگ وضو کرتے ہیں نا۔ پاک ہونے کے لیے گھر ہے نا، لیکن اس میں کیوں جا رہی ہو؟ ارے تو نہ ارے مسئلہ ہے۔ ارے مسجد ہے، تھوڑا احترام کرو۔ مسجد کا احترام کر رہی ہوں، یہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ بہت سالوں سے ڈھونڈ رہی تھی میں۔ دماغی حالت۔ یہ نا گندا فون لگایا میں، بہلول بھائی کو بھی لگایا، ضمیر بھائی کو بھی لگایا، شاید موبائل گندا کر رہے ہو مجھے، اور مجھے بولتے ہو غلطی کرتی ہو۔ کوئی بھی سوال ہے سمجھداری سے پوچھو اور سمجھداری سے جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیے 6:58 ہو رہا ہے۔ یہ لیڈیز مسجد کے اندر فجر کی نماز کے بعد سے آ گئی ہیں۔ ان کو بہت سمجھایا گیا کہ آپ لیڈیز ہیں، آپ چلے جائیے، مسجد کے اندر جو ہے مت آئیں، یا مستورات کے حدود جہاں تک ہے نماز کے لیے انتظام کیا ہے، ذمہ داروں نے آپ کو ہی نماز پڑھیں، مگر یہ مانی نہیں، اپنا جسم سے جو ہے کپڑا دوپٹہ وغیرہ جو ہے بورڈ میں، اعلان والے بورڈ کے اوپر میں سکھائیں، اور پھر اس کے بعد میں حوض کے اندر گئیں، حوض کے اندر غسل وغیرہ کی، حوض کے اندر بیٹھ کر پھر وہ باہر نکلیں۔ پھر ان کو سمجھایا گیا کہ آپ نکل جاؤ، آپ لیڈیز ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں تو جو ہے نہیں جاؤں گی، میں آئی ہوں پاک ہونے، نماز پڑھنا، اور بہت بحث کرنے لگی۔ میں نے 100 نمبر پر کال بھی کیا، کال نہیں اٹھائے، اور پھر ابھی وہ چلی گئی تھی باہر، مگر وہاں مستورات کے جو نماز کا روم ہے وہاں سے ایک جانماز لے کر آ کر مسجد میں صف اولیٰ کے اندر میں جو ہے نماز پڑھنے لگی ہے۔ میں پولیس والے کو بھی فون کیا 100 نمبر پر 2 مرتبہ، مگر انہوں نے کال نہیں اٹھایا۔ ٹیچر کو لے آئے، وہ ٹیچر کو تم اپنے آپ کو روک نہیں سکتے، گناہوں سے بچا نہیں سکتے، تمہاری نیتوں کو صاف کرو۔ مسجدوں میں عورتوں پر کیوں پابندی لگا رہے؟ ایک عورت کو اگر میں سفر میں مجھے نماز پڑھنا ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میں یہاں میں پڑھوں گی، میں کہیں بھی پڑھوں گی۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، میرے لیے چھوٹی نہیں پڑھی۔ آپ ہم کو سمیٹ کے کیوں رکھ رہے، لیکن کیوں یہاں پڑھ لی تو کون سا گناہ ہو گیا؟ عورت کا سنو میری بات، سنو میری بات۔ عورت بازار میں جا سکتی ہے، عورت سنیما گھر میں جا سکتی ہے، عورت ہر جگہ جا سکتی ہے، مسجد میں نہیں آ سکتی؟ مسجد میں عورت کی عبادت نہیں آ سکتی، کیوں نہیں آئیں گی؟ اور میں آؤں گی، ابھی بھی رکوں گی، ابھی بھی رکوں گی، میں رکوں گی نا، میں رکوں گی، جب وہ قرآن پڑھوں گی میں بھی پڑھنے کے لیے آئی ہوں۔ ہم صرف اس ویڈیو سے جو سمجھ میں آیا ہے صرف اسی پر بات کریں گے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر مجھے ایسا لگا، شاید آپ کو بھی لگا ہوگا کہ یہ لڑکی شاید دماغی طور سے کمزور ہوگی، لیکن پھر اس کی فرفر باتیں سن کر ایسا لگا کہ جیسے یہ لڑکی پڑھی لکھی لگتی ہے، یا کم سے کم سمجھدار لگتی ہے، اس کو اچھی خاصی معلومات ہے، جو یہ کہہ رہی ہے کہ کیا مسجد میں عورتیں نہیں آ سکتی؟ کیا عورتیں مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکتی؟ عورتیں مال میں جا سکتی ہے، سنیما ہال میں جا سکتی ہے، تو پھر مسجد میں کیوں نہیں آ سکتی؟ حالانکہ اس سے یہ بھی کہا جا رہا ہے
यानी मस्जिद के जो जिम्मेदार है, जो लोग हैं, वो उससे ये कह भी रही है कि औरतों के नमाज पढ़ने के लिए अलग जगह है मस्जिद में ही, वहां जाकर आप नमाज पढ़ लो, लेकिन वो नहीं मानी। बेशक यहां तक तो बात सही है कि औरतें मस्जिद में क्यों नहीं आ सकती, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये औरत, ये लड़की मस्जिद में आई और वजू करने के हौज में उतर गई, क्या ये सही है? वजू करने के हौज में उतरकर ये तैरने लगी जैसे ये हौज नहीं बल्कि स्विमिंग पूल है, क्या ये सही है? वजू करने के पाक पानी में ये थूकने लगी, क्या ये सही है? इससे ऐसा लगता है, यानी इस लड़की के, इस औरत की इन हरकतों से ऐसा लगता है कि इस औरत की नीयत नमाज पढ़ने की नहीं थी, एक हंगामा खड़े करने की नीयत से वो आई थी, एक तमाशा बनाने की नीयत से वो आई थी, या फिर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए आजकल लोग अजीब अजीब हथकंडे इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर इस औरत को नमाज पढ़नी होती तो ये सीधे से जहां औरतों के नमाज वजू करने की जगह होती वहां जाती, वहां वजू करती, जहां औरतों के लिए नमाज पढ़ने के लिए खास जगह बनाई गई है वहां जाकर नमाज पढ़ती और फिर चली जाती। देखिए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें मस्जिद में आकर नमाज पढ़ती थी, लेकिन बड़े सलीके के साथ, पर्दे के एहतमाम के साथ और कुछ शर्तों के साथ। और वो जमाना जिसे खैरुल कुरून कहा जाता है, यानी बेहतरीन जमाना, जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस मौजूद थे, जहां किसी नामहरम पर नजर उठाना, किसी औरत पर नजर डालना एक गुनाह कबीरा समझा जाता था, बड़ा गुनाह समझा जाता था। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फितनों का दौर शुरू हुआ। बाद में एहतियातन इस पर रोक लगा दी गई। खुद अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिनसे हमें आधा इस्लाम सीखने को मिला, उन्होंने खुद फितनों को देखकर फरमाया था कि आज अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात होते तो औरतों को मस्जिद में आने से रोक देते। तो कोई तो बात होगी जो अम्मा जान हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इतनी बड़ी बात कही। लेकिन फिर भी आज कई मुल्कों में, बल्कि हमारे मुल्क में भी कई मस्जिदों में औरतों को मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने की इजाजत है। वो कोई नाजायज काम तो है नहीं, बस एहतियात करने की जरूरत है। औरतों को मस्जिद में आने के लिए अलग वजू का इंतजाम किया जाता है, उनके लिए नमाज पढ़ने की अलग जगह बनाई जाती है। यानी औरतों के लिए अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग प्रोटोकॉल होता है, उनका अलग नज्म होता है। वो भी इसलिए ताकि कोई बेएहतियाती ना हो, औरतों को कोई तकलीफ ना हो और वो आराम से अपनी इबादत कर सके। और दुनिया में भी हर जगह औरतों के लिए अलग इंतजाम होता है ना। अगर आप देखिए, कहीं भी अगर लाइन लगाने की जरूरत पड़ जाती है, क्यू में खड़े रहने की जरूरत पड़ती है, तो मर्दों की लाइन अलग होती है, औरतों की लाइन अलग होती है। कई जगह पर मर्दों के डिपार्टमेंट अलग होते हैं, औरतों के डिपार्टमेंट अलग होते हैं। यहां तक कि आप ट्रेन में भी देख लीजिए, लेडीज का डब्बा अलग होता है ना। जरा सोचिए ना, अगर कोई लेडीज ट्रेन डब्बे में अगर कोई मर्द घुस जाए तो क्या औरतें बर्दाश्त करती है? क्या नहीं ना, उसकी तो पिटाई कर दी जाती है। कई वीडियो सामने आए हैं, कई केस हुए हैं, उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, उस पर केस कर दिया जाता है। रही मॉल और सिनेमा हॉल की बात, तो मॉल और सिनेमा हॉल फन और मस्ती की जगह है, घूमने फिरने की जगह है। अल्लाह के घर में मॉल और सिनेमा हॉल में कुछ फर्क है या नहीं? आप थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर आप किसी मिनिस्टर से मिलने जाते हैं या राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं या प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, तो 100 तरह के प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर मुलाकात होती है। इसलिए अल्लाह के घर के भी, यानी मस्जिद के भी और इबादत गाहों के भी अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, मस्जिद के आदाब होते हैं, जिसको बजा लाना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं? ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। यहां तो जितनी भी एहतियाती कदम उठाए जाए उतने कम है, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, औरतों को तकलीफ ना हो, मर्दों को कोई तकलीफ ना हो, कोई बेएहतियाती ना हो, कोई गुनाह ना हो।
अल्लाह के घर की बेअदबी ना हो। इसलिए मेरी बहनों, अब अक्सर मस्जिदों में औरतों के लिए नमाज पढ़ने के लिए अलग जगह बनाई गई है। वजू के लिए अलग जगह होती है, और नमाज के लिए अलग जगह होती है, कुरान पाक पढ़ने के लिए जगह होती है, इबादत करने के लिए जगह होती है। आप वहां आराम से नमाज पढ़ सकती है, इबादत कर सकती है। और जिन मस्जिदों में औरतों के लिए जगह नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वहां भी जगह बनाई जा रही है। बस जो मस्जिदों के जो उसूल है वहां के माहौल के हिसाब से वहां के जिम्मेदार बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हिफाजत और बेहतरी के लिए होते हैं। आप उसको फॉलो करें। इस तरह की औरतों की तरह, यानी इस औरत की तरह जो उसने अहमकाना हरकत की है, बचकाना हरकत की है, वो हरगिज मुनासिब नहीं है। ऐसी औरतों को और ऐसी हरकतों को आप बिल्कुल भी अप्रिशिएट ना करें, या फिर उसका कोई अलग से मतलब ना निकाले। ये सिर्फ तमाशा है, हंगामा है। इससे बदनामी हमारी होती है, मस्जिदों की बदनामी होती है, इस्लाम की बदनामी होती है, मुसलमान की बदनामी होती है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से बहुत सारी बातें हमारे समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि और भी लोग इन बातों को सुने, तो इन वीडियो को आप शेयर करें। शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम आप लाइक करें और कमेंट में जरूर अपनी राय दें। अगर आप लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं तो YouTube खुद ही इस वीडियो को आगे बढ़ा देता है और लोगों को बता देता है। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।